Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. This is the evidence-based strategy video for ancient medieval art and culture for prelims 2025. अब ये जो subject है, this subject is actually a make or break subject. Why? Because nobody studies this properly. कोई भी इसको properly नहीं पढ़ता. There are going to be, and I'll show you the evidence, at least 10 questions from this subject. And अगर आप इसको ढंग से पढ़ो, आप यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चंस का एज ले सकते हो, which would mean an edge of 8 to 10 marks. And this could be the difference between making it or breaking your attempt. Therefore, this video, watch it till the end, understand the lessons here. मैं बिल्कुल एविडेंस के बेसिस पे आपको दिखाऊंगा कि ये सब्जेक्ट हमें कोई बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है. Just the strategy needs to be smart, and if we can follow this smart strategy, we'll get a very good outcome in this subject. In this video, I'll also tell you a plan for the next 2 weeks with details of कौन सी बुक से कहां से क्या पढ़ना है, किस दिन पे कैसे PYQs प्रैक्टिस करने हैं, etc etc. All of that will be covered in this video. So let's get started. First up, let's look at the evidence of how many questions have come. So in the last 5 years, this is the trend, right? 2024 में there were 9 questions, then 10, sometimes 12, even more than 12, 13 questions भी आए हैं. तो हम मान लेते हैं थोड़ा on average हमें 10 questions तो मिलने ही वाले हैं इस सब्जेक्ट से every year. Now not all of them are solvable questions. ठीक है, इसमें से मैं मान लेता हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही जो सॉल्वेबल नहीं है, बट द अदर 6 आर क्वेश्चंस दैट कैन बी सॉल्व थ्रू स्टैंडर्ड सोर्सेज. अगर हम इन पे मेहनत करें और इनको इस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ के समझ के जाएं. तो देखते हैं इस सब्जेक्ट में 3 कंपोनेंट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. पहले इनको ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन वील हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर ईच. तो अगर हम अलोंग द सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखें, एंशिएंट इंडिया is asked 16%, medieval is 25%, and art and culture is 58%. So of course art and culture is most important, but this does not mean कि हम बाकियों को ignore कर सकते हैं, because in reality all of them are pretty connected to each other. जैसे हम ancient India की बात करें तो यहाँ पर there is a discussion of Indus Valley culture, right? और Indus Valley civilization जो हमारी है, इसकी हिस्ट्री आप यहां पढ़ोगे और इसका आर्ट एंड कल्चर आप यहां पढ़ोगे. सो दे हैव टू बी स्टडीड टुगेदर. और ये कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा. तो अब तीनों सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली देखते हैं. पहले एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग. मेरे को भी जब मैंने ये एनालिसिस किया मुझे बहुत शॉकिंग लगा ये देख के कि एंशिएंट इंडिया में 4 ही जगह हैं जहां से मेजर क्वेश्चंस आते हैं. वो 4 जगह कहां है? 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन, 20% of the questions. 2, Mauryan period, especially with regards to Ashokan edicts, etc. Third is the Gupta period. And fourth is important places and sites. Sites पे बहुत questions देखे मैंने in ancient India. Sites जैसे क्या ये पोर्ट है या was this a trading town, etc etc. यही 4 एरियाज हैं जिन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है. Now a word of caution here. This does not mean कि आप बाकी चीजें छोड़ के चले जाओ. This just means that these 4 areas you need to have maximum focus. यहां पर अगर 2 sources भी पढ़ने पड़ जाएं तो पढ़ लो, because major questions यहीं से आ रहे हैं. So firstly keep this in mind कि ancient India के जितने questions आए in the last 10 years they have come from these 4 sources. So these are the 4 where you need to keep maximum focus. अब थोड़ा और एनालिसिस देखते हैं. साइट्स पे बहुत क्वेश्चंस हैं and वो 10 to 15 questions have come that are related to some of the other sites, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसमें अशोकन एडिक्ट्स भी काफी हाई यील्डिंग एरिया है और हड़प्पन साइट्स भी काफी हाई यील्डिंग एरिया है. तो ये बात ध्यान में रखना. हम अभी क्या करेंगे, अब हम मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर को भी देखेंगे. देन व्हेन वी स्टडी द सोर्सेज यू विल अंडरस्टैंड मैं आपको ऐसी रिकमेंडेशन क्यों दे रहा हूं, राइट? आगे देखते हैं. मिडिवल इंडिया की बात करते हैं. मिडिवल इंडिया में the questions are coming 25% from terminologies. आपको याद होगा एक बार क्वेश्चन आया है on फनम which is a type of coin in the विजयनगर empire. एक बार क्वेश्चन आया है हुंडी पर which is also a type of coin. तो ये terminologies बहुत इंपॉर्टेंट है. If you watch this video till the end, I'll give you a wonderful surprise here. ये प्रॉब्लम आपकी मैं सॉल्व करने वाला हूं इसी वीडियो में. Second thing here important is the विजयनगर empire. विजयनगर empire has been UPSC's favorite topic even in the mains, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. Then early medieval kingdoms, the things that we tend to ignore, Hoysalas, the Chola Empire, etc. ये जो early medieval kingdoms हैं इनको हम इग्नोर करते हैं. यहाँ पर भी क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं.
मुगल एम्पायर इज ऑल्सो अ फोकस एरिया। तो इन 4 एरियाज को अगर आप देख लो, एंड लेट्स जस्ट ऐड वन मोर, दिल्ली सल्तनत। These 5 areas are basically all of the questions that are coming from medieval India। तो यहां पर भी बहुत strong focus areas हैं। इन जगह पर हमने ध्यान रखना है। Terminologies is a different or a difficult ball game। Why? Because terminologies आप एक जगह कहीं पे पढ़ नहीं सकते, right? But मैं आपको पढ़वा दूंगा एक जगह पर सारी terms। This is my promise to you, this problem I'll solve। जो 4 और किंगडम्स हैं, मुगल एम्पायर, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत और अर्ली मेडिवल किंगडम्स, इन पे हमें फोकस हाई रखना है एज फार एज मिडिवल इंडिया इज कंसर्न्ड। तो एक बार एनालिसिस देखते हैं। क्या एनालिसिस है कि विजयनगर एम्पायर काफी हाई फोकस एरिया है। रेवेन्यू सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं मिडिवल इंडिया से। तो जब मिडिवल इंडिया पढ़ रहे होंगे तो रेवेन्यू सिस्टम्स का ध्यान रखेंगे, जैसे कि इक्ता सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पे भी क्वेश्चन आए हैं, राइट? जो लेसर नोन डायनेस्टीज हैं, स्पेसिफिकली दी अर्ली मेडिवल किंगडम्स, ककतिया डायनेस्टी एक्सेट्रा, इन पे क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं आजकल, तो इनको ढंग से पढ़ना है। एंड अगेन टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। इरिगेशन टर्म्स दे हैव आस्क्ड, आराघट दे हैव आस्क्ड, पनम दे हैव आस्क्ड, हुंडी दे हैव आस्क्ड। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन चीजों को हमने ध्यान रखना है व्हेन वी आर स्टडीइंग मेडिवल इंडिया। अब थर्ड थिंग, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में भी 4 ही एरियाज हैं जहां से मेजर क्वेश्चंस आए हैं। 1 is literature, 2 is religion। रिलीजन में भी देयर आर स्पेसिफिक रिलीजन्स, आई एम श्योर यू ऑल नो दिस। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से ही आ रहे हैं मोस्ट क्वेश्चंस। देन आर्किटेक्चर एंड विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। यही 4 चीजें हैं, राइट? तो इसके ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। दीज आर द एरियाज दैट वी नीड टू फोकस ऑन। अब इनका और डिटेल एक बार देखते हैं कि यहां पर क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है ये, बट वेरी वेरी इग्नोर्ड एरिया। 11 टाइम्स क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम दिस इन 10 years। तो आप समझ रहे हो, हर साल एक क्वेश्चन आना ही है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। तो इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अगेन 11 टाइम्स क्वेश्चन। अब इसमें कई चीजें सॉल्वेबल नहीं होती। बुद्धिज्म जैनिज्म में एक लेवल से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना is not very good because the questions themselves are not solvable a lot of times। आप सारी बुक्स पढ़ के चले जाओगे तो भी सॉल्व नहीं होगा, but still we'll study this properly and we'll study this well। मुगल्स, ये वैसे भी एक इंपॉर्टेंट एरिया था। विजयनगर एंड मौर्यन आर्ट, ये वैसे भी वहां पर भी इंपॉर्टेंट था, तो यहां भी इंपॉर्टेंट है। अब जो विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जैसे कि डांसेस एंड म्यूजिक, इस पे ओवर द इयर्स द इंपॉर्टेंस हैज डिक्लाइंड। इग्नोर नहीं करेंगे, बट ये फैक्ट है कि लास्ट 5 years में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले बहुत पूछा जाता था, बट अलॉन्ग विद दैट जब यहां इंपॉर्टेंस डिक्लाइन करी है, क्या बढ़ा है? लिटरेचर पे इंपॉर्टेंस बढ़ी है। सो संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर एक्सेट्रा, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगेन आई विल रिकमेंड, मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये जो 3 पाई चार्ट्स हैं, आई विल शो देम अगेन। ये पहला, ये मिडिवल का, और ये आर्ट एंड कल्चर का, आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट लेके अपने सामने रख लो। बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग दीज टॉपिक्स, इंश्योर कि इन पे फोकस ज्यादा रहे। मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ये बात बोली जाती है कि अगर आप 5000 पेज भी पढ़ के चले जाओ तो सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकते। बट मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप ये 10-15 टॉपिक ढंग से पढ़ के चले जाओ तो आउट ऑफ 10 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे, एंड दैट विल गिव यू अ ह्यूज एज। ये वो सब्जेक्ट है जो सब इग्नोर करते हैं। लेट्स मेक आवरसेल्व्स गेट एक्स्ट्रा मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट एंड गेन एन एज ओवर अदर्स। अब इसको पढ़ना कैसे? पहली चीज है, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, मैं आपको रिलेशन दिखाता हूं पीवाईक्यूज के बीच में। 2021 में यहां पर पूछा चंद्रकेतुगढ़, एज यू कैन सी एंशिएंट इंडिया में साइट्स में इंपॉर्टेंस। 2024 में फिर पूछा चंद्रकेतुगढ़ दोबारा। अब यहां देखो, यहां पर जैन डॉक्ट्रिन, रिलीजन, जैनिज्म इंपॉर्टेंट है, 2013 में पूछा। यहां पर सेकंड स्टेटमेंट देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। और यहां पर सोल्स आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एक्सेट्रा। सेम चीज दोबारा पूछी हुई है। आगे देखते हैं। अब यहां पर क्या पूछा है? श्रमण, परिव्रजका एक्सेट्रा। अब ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, राइट? एंड यहां पर आप देखो, दोबारा पूछा परिव्रजका, दोबारा पूछा श्रमण ट्रेडिशन, राइट? अगेन इट वाज आस्क्ड। तो अगेन रिलीजन में भी बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, एंड इवन दीज टर्म्स रिलेटेड टू रिलीजन आर आस्क्ड। अब ये देखो, बोधिसत्व एंड बुद्धिज्म आस्क्ड इन 2019। अब ये देखो 2020 का क्वेश्चन, परमितास, राइट? सो अगेन अ रिलेशनशिप
इज देयर. अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो यू वुड नो दिस, राइट. इट इज बेसिकली द सेम थिंग एज यू कैन सी. अब पढ़ना कैसे है, देखो 4 बुक्स हमें पढ़नी है और चारों पूरी तरह से नहीं पढ़नी है. बहुत ही सिलेक्टिव एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आई विल शो यू लाइव के इन बुक्स को कैसे पढ़ना है, राइट. बुक्स कौन कौन सी हैं? थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, दिस इज न्यू एनसीईआरटी. दिस इज पार्ट 1, ये एंशिएंट इंडिया की न्यू एनसीईआरटी है. पार्ट 2, दिस इज न्यू एनसीईआरटी, ये मिडिवल इंडिया की न्यू एनसीईआरटी है. फिर ये लूसेंट है. लूसेंट इज अ बुक दैट इज जनरली यूज्ड इन एसएससी एग्जाम्स, बट यहाँ पर बहुत अच्छे से फैक्ट्स की कंपाइलेशन मिली हुई है. इसको भी यूज करना है, कैसे यूज करना है बताऊंगा. और ये नितिन सिंघानिया सर की बुक है ऑन आर्ट एंड कल्चर. दिस इज द ओनली बुक दैट्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो दिस इज व्हाट एवरीवन स्टडीज, सो वी विल आल्सो स्टडी दिस. अब इनको पढ़ना कैसे, लेट्स टॉक अबाउट दैट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आई कैन गिव यू टुडे. देखो, हम स्टार्ट करेंगे इन बुक से, स्टार्ट करेंगे हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. वील रीड दिस फर्स्ट, यहां का एक चैप्टर पढ़ा. फिर हम उठाएंगे लूसेंट. लूसेंट में आपको मिलेगी फैक्ट्स की एक बहुत अच्छी कंपाइलेशन. यहां से फैक्ट्स ऐड करेंगे और फिर उसी चीज के आर्ट एंड कल्चर के रेफरेंसेस यहां से ऐड करेंगे. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो मैं आपको ये करके दिखाता हूं अभी, ठीक है. लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ दिस इज डन. दिस इज द पीडीएफ ऑफ द न्यू एनसीईआरटी, ठीक है. तो इसको जरा ध्यान से देखते हैं. इसका फर्स्ट चैप्टर है ये, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हरप्पन सिविलाइजेशन. तो इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे. नाउ आई नो दैट साइट्स आर इंपॉर्टेंट. मुझे ये बात पता है पहले से, क्योंकि मैं एनालिसिस कर चुका हूं कि साइट्स इंपॉर्टेंट है. तो मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा. अब यहां पर ये मैप आया, some important mature Harappan sites. तो I know that this site map has now got to be taken seriously. यहाँ पर लोथल है, ये देखो, लोथल is here which is a dock. इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, राइट. फिर मैं इस चैप्टर को पढ़ता जाऊंगा. आई विल कीप ऑन रीडिंग दिस. ये जो साइड में बॉक्सेस हैं, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा है, राइट. टेराकोटा बुल है यहाँ पे. बुल और लायन के सिग्निफिकेंस पे इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन आया था 2022 मेंस में. सो and like you see here, sites are also mentioned. Banavali is mentioned, Kalibangan is mentioned, right. तो ये हम पढ़ते जाएंगे और हमें पता है साइट्स इंपॉर्टेंट हैं. ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये हमें पढ़ने हैं, राइट. थोड़ी बच्चों की तरह लिखी गई है ये बुक, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. अब मैंने ये चैप्टर पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का फ्रॉम दिस बुक. दिस इज माई फर्स्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट. यहाँ पर बहुत कॉन्टेक्स्ट मिलेगा आपको, फैक्ट्स की बोम्बार्डमेंट नहीं मिलेगी. एक पूरा ओवरऑल पिक्चर आपको एंशिएंट इंडिया की यहां पर मिल गई, राइट. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने पढ़ना था. व्हाट डिड आई डू फर्स्ट माय जॉब वाज, आई एम रीडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन. पहले मैंने क्या किया, मैंने 12 जो एनसीईआरटी है, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, वहां से मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया. दिस इज माय फर्स्ट स्टेप. इसके बाद में क्या करूंगा, सेकंड स्टेप क्या है, अब मैं खोलूंगा लूसेंट. अब ये लूसेंट के पीडीएफ है, आपको शायद ढंग से ना दिख रही हो, सॉरी अबाउट दैट, बट दिस इज द वन दैट वाज अवेलेबल, राइट. बेसिक आइडिया यहां से लग जाएगा. ये देखो, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, हरप्पन सिविलाइजेशन से ये स्टार्ट है. यहां से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा. अब यहां पर सिर्फ फैक्ट्स लिखे हैं, शायद आप रीड ना कर पा रहे हो, बट ओनली फैक्ट्स आर रिटन हियर. जैसे ओल्डेस्ट नेम इज इंडस सिविलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फर्स्ट स्कॉलर हु यूज्ड द टर्म इंडस सिविलाइजेशन, सॉरी, फर्स्ट स्कॉलर हु यूज्ड द टर्म, सॉरी अबाउट दिस, फर्स्ट स्कॉलर हु यूज्ड द टर्म इंडस सिविलाइजेशन वाज जॉन मार्शल. ये चीज यहां पर लिखी है. तो यू विल सी ओनली फैक्ट्स हियर. नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है, सदर्न मोस्ट साइट कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, मुझे पता है साइट्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये ढंग से पढ़ूंगा. देन आई विल रीड दिस. तो सेकंड स्टेप क्या हुआ कि मैं लूसेंट से ये सेम चीजें पढ़ूं, सिर्फ फैक्ट्स लेने के लिए. ओनली द फैक्ट्स आई ऐड फ्रॉम हियर, ठीक है. अब जैसे यहां पर देखो वेरियस साइट्स के कुछ कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, तो मैं ये फैक्ट्स पढ़ूंगा एंड दैट्स इट. यहां पर खत्म हो गया है. ये सिर्फ 4 पेज है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो बहुत बड़ी बुक नहीं है. इट इज जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट्स, रटने के लिए ही बनाई गई है. बट मैं बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट ले चुका हूं, तो मुझे अब ये चीज रटने में बहुत आसानी है. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी नाउ टू मक दिस अप. थर्ड थिंग, नाउ आई विल गो टू नितिन सिंघानिया सर्स बुक. नितिन सिंघानिया सर की बुक में मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे. जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, एवरीथिंग विल बी क्लियर. यहां पर आर्किटेक्चर स्टार्ट है, यहां पर स्टार्ट है हरप्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. अब मैं ये चीज पढ़ूंगा. नाउ आई ऑलरेडी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन.
I have added facts from Lucent. Now I am reading this. I will anyway not find a lot of new things here. जैसे Lucent में भी हमने देखा था साइट्स के बारे में लिखा था, मैंने ओल्ड एनसीईआरटी में देखा था वहां भी साइट्स के बारे में लिखा था, और यहां भी साइट्स के बारे में लिखा है. तो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज रीइंफोर्समेंट एंड रिविजन फॉर मी. मुझे बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 3 जगह ऑलमोस्ट सेम चीजें पढ़ रहा हूं. बट यस, सम थिंग्स विल बी देयर, थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें जरूर होंगी, एंड दैट विल हेल्प मी एक्चुअली गेट माई मेमोरी इन प्लेस. राइट, अब मैं ये पढ़ता जाऊंगा. राइट, वंस आई हैव रेड दिस, जैसे यहां पर ये देखो, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम धोलावीरा, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. क्योंकि साइट्स इंपॉर्टेंट हैं तो साइट्स पे क्वेश्चन आते हैं, ये बात मुझे पता है, मैं साइट्स को ध्यान से देखूंगा. राइट, लोथल में देयर इज अ डॉक यार्ड. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट हैज कम बिफोर. मैं इसको पढ़ता जाऊंगा. नाउ आई हैव रेड फ्रॉम हियर ऑल्सो. दिस इज द थर्ड स्टेप. राइट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी रिपीटेड. मैं ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट ले चुका हूं और मेरी रिविजन भी अच्छी हो गई. So this is the third thing that I need to do, where I will read नितिन सिंघानिया sir's book. ठीक है, मैंने ये पढ़ लिया. Now my preparation is complete. ये 3 स्टेप मैंने कर लिए, मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया. अब जो सब्जेक्ट्स या इस सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो उन पाई चार्ट्स में थे, उनके लिए तो ये तीनों काम बहुत डिटेल में करने हैं. बाकियों के लिए क्या करना है? बाकियों के लिए यू कैन स्टॉप हियर. You can stop here, you can skip this step and go directly here. इस बुक को कैसे पढ़ना है इसकी भी बात करेंगे. तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट थे. गुप्ता इंपॉर्टेंट है, मौर्यन पीरियड इंपॉर्टेंट है, आईबीसी इंपॉर्टेंट है. उसके लिए तो ये तीनों चीजें करेंगे. अब मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसपे उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, 12th एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सीधा नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ेंगे. ये पूरी पढ़नी है बुक, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. लूसेंट सिर्फ वहीं पढ़नी है जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ओनली वेयर वी हैव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव टू रीड लूसेंट. एंड नितिन सिंघानिया सर की बुक कैसे पढ़नी है इस बारे में मैं आपको अभी आगे बताता हूं. ठीक है, आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको, बट दिस विल हेल्प यू अ लॉट एंड सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम. राइट, आगे चलते हैं. अब मैंने समझ लिया, सबसे पहले ये पढ़ूंगा, देन ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा. ये कब पढ़ूंगा? जब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उन पाई चार्ट्स में है. राइट, अब नितिन सिंघानिया सर की बुक के बाकी टॉपिक्स का क्या करना है? जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने ऐसे पढ़ लिए, बाकी का क्या करना है? तो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस एक्सेल शीट वेयर एवरी सिंगल चैप्टर और क्या, हाउ टू रीड दैट चैप्टर. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर चैप्टर है इंडियन आर्किटेक्चर. हाउ टू रीड में क्या लिखा है? रीड विद एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री. अब चैप्टर है इंडियन हैंडीक्राफ्ट, तो लिखा है कैन बी इग्नोर्ड. कैन बी इग्नोर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ के चले जाओ, रीड वंस एंड बात खत्म. राइट, अब इससे ये मत कहना कि हैंडीक्राफ्ट से क्वेश्चन तो आ ही सकता है यार. आई एम नॉट समवन हु कैन प्रिडिक्ट कि इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा. आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर वैलिड ऑल्सो, बट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड्स हम एक रीजनेबल गेस लगा सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे लिखा है इंडियन थिएटर, तो मैं लिख रहा हूँ कैन बी इग्नोर्ड. इंडियन पपेट्री कैन बी इग्नोर्ड. इसका मतलब ये नहीं है कि इनको पढ़ना नहीं है, इनको पढ़ने का भी तरीका भी आगे डिस्कस होगा. इनमें क्या होता है, सिर्फ लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, और वो प्रॉब्लम भी मैं ही आपकी सॉल्व करूंगा. तो अब ये एक लिस्ट है. राइट, so what have I understood? What is my algorithm? My algorithm is simple. If there is an important topic, how do I know what is important? I know on the basis of past trends. If there is an important topic, I will do 3 things. I will read new NCERT, I will read Lucent, I will read Nitin Singhania sir's book. Other than important topics, for other topics, other than this, what am I going to do? I am going to read new NCERT completely and fully. ये तो मैं पूरी पढ़ के ही जाऊंगा. और नितिन सिंघानिया सर की मैं बुक पढ़ूंगा. इसके लिए मैं उस एक्सेल शीट को रेफर करूंगा. अब इस एक्सेल शीट में कई जगह लिखा है कि यू कैन इग्नोर दिस, कैन बी इग्नोर्ड. इसका मतलब है कि सिर्फ लोकेशन इंपॉर्टेंट है उन चीजों की, कि पपेट्री की एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ी, लोकेशन देख ली. अब ये आपको याद कैसे होगा, इसकी भी बात कर लेते हैं. और एक टर्मिनोलॉजीज की भी हमारी प्रॉब्लम अभी रहती है, इन केस यू रिमेंबर. ये मैंने स्टडी कर लिया. अब आगे देखते हैं. जो भी ये चीजें होती हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग्स, भक्ति सेंट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड थे, पपेट्री, थिएटर, डांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब की लोकेशनल चीजें हमें पता होनी चाहिए. तो हमें डिस्क्रिप्शन का बेसिक आइडिया और लोकेशन याद हो. अगर आपको ये याद हो जाए कि अच्छा यार ये जो डांस है इस स्टेट का है, तो इतना बहुत है. इससे ज्यादा आपको वैसे भी रिटेन करना बहुत मुश्किल है. तो रादर देन रीडिंग लोकेशन ऑन टेक्स्ट,
मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ मैप्स बना देता हूं जिन पे ये चीजें मार्क्ड हैं। तो जैसे यहाँ म्यूरल पेंटिंग्स हैं, अब ये म्यूरल पेंटिंग्स मार्क्ड है, यहाँ पर अजंता है, यहाँ पर एलोरा है, यहाँ पे बाग है, दिस इज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। नीचे ये भी मार्क्ड है कि कौन कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, कि इनमें से बुद्धिस्ट पेंटिंग्स कौन सी हैं, जैन कौन सी हैं, हिंदू कौन सी। दिस इज ऑल्सो मार्क्ड हियर, राइट। दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर लोकेशनली। मैंने एक सेट ऑफ 20-25 मैप्स बनाया है। ये मैप्स आप मेरी वेबसाइट drshivan.com से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज के टैब में जाना और वहां पर आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो जस्ट रेफर टू दीज मैप्स, तो आपका आधा काम खत्म, राइट। अब एक प्रॉब्लम बची थी टर्मिनोलॉजीज की। तो पहले तो ये समझ आया होगा कि जहां भी ये लिखा है, जहां पर ये लिखा है कैन बी इग्नोर्ड, अब इसमें क्या करना है, उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का बस चैप्टर पढ़ लिया और ये मैप्स रेफर कर लिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब टर्मिनोलॉजीज की प्रॉब्लम थी। देखो यार, टर्मिनोलॉजीज रटनी पड़ेंगी, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। हम सारी टर्मिनोलॉजीज नहीं पढ़ सकते, 70-80 टर्मिनोलॉजीज हैं, क्वेश्चन इससे आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ इट इज योर एबिलिटी ऑफ मगिंग अप। आई नो इट इज डिफिकल्ट, मैंने भी याद किया है, मुझे भी बहुत मुश्किल से याद होती थी, नहीं याद होती, बट क्वेश्चन आता है तो आता है, एंड देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। या तो फिर अब सारी बुक्स बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, या स्मार्ट अप्रोच फॉलो करते हैं कि ठीक है यार, एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमें रटनी पड़ेंगी एंड देयर इज नो अदर वे, बट एक जगह पर तो मिल जाए हमें सारी टर्मिनोलॉजीज। तो इसकी भी पीडीएफ मैंने बना दी है। इन दिस पीडीएफ यू विल सी ऑल टर्मिनोलॉजीज इन वन प्लेस। सारी टर्मिनोलॉजीज एक जगह पे हैं, ऑल ऑफ देम, लिटरली ऑल ऑफ देम आर रिटन हियर। ये पीडीएफ भी drshivan.com मेरी वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज वाले टैब में अवेलेबल है, आप वहां जाओ और वहां से इसको डाउनलोड कर लो, राइट। तो यू रेफर टू दिस पीडीएफ, ये पीडीएफ पढ़ लो। तो आपका मैप सॉर्टेड हो गया, तो मैप्स एंड लोकेशनल थिंग्स आर सॉर्टेड, राइट। टर्मिनोलॉजीज वाली प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। जो कैन बी इग्नोर्ड वाले टॉपिक्स थे उनको कैसे पढ़ना है, थ्रू मैप्स पढ़ना है। बाकी नितिन सिंघानिया के हर चैप्टर को कैसे पढ़ना है, इसका प्लान इज सॉर्टेड। एक चीज बची, इंडियन फिलोसफीज। जो फिलोसफीज है ना यार, उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड फॉर अ नॉन फिलोसफी ऑप्शनल स्टूडेंट दिस इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जेन्युइनली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी यहाँ, राइट। वरुण सर ने मुझे पढ़ाई है ये फिलोसफीज, मेरे को ये सारी समझ आती थी। 1 घंटे 20 मिनट का ये लेक्चर है, इस लेक्चर को देखो, इस लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल है और फिलोसफीज वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व। तो इंडियन फिलोसफीज यहां से पढ़ना है। सो अल्टीमेटली फॉर आर्ट एंड कल्चर वी हैव this algorithm that says that okay, for important topics I'll do these 3 things, for others I will read the NCERT completely and I will read Nitin Singhania mein bhi I will now have maps to refer. I have one source for terminologies, I have one source for all understanding of these maps, I have one source for philosophies, right. तो मेरा पूरा मैट्रिक्स अब बन चुका है आर्ट एंड कल्चर का। दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। मैं ज्यादा टाइम इसलिए समझाने में लगा रहा हूं क्योंकि अब टाइम सेव बहुत होगा आपका पढ़ाई में। आपका 1 से 1.5 हफ्ता बच जाएगा अगर आप ऐसे पढ़ लो, एंड यू विल हैव मच मोर कवरेज। लास्ट चीज बची पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज का क्या करें? सो आई हैव टॉक्ड टू कवल बवेजा सर हु टीचेस हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री एट सारथी IAS, एंड ही विल बी डूइंग अ मैराथन वीडियो। एक मैराथन वीडियो में जितने भी पीवाईक्यूज आज तक आए हैं, ऑल द पीवाईक्यूज दैट हैव कम टिल डेट फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स टिल टुडे, जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन एंड इवन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑप्शंस, जो गलत ऑप्शंस हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो देख लेंगे और हमारे पीवाईक्यूज की प्रॉब्लम भी सॉर्टेड, राइट। आई एम नॉट डूइंग दिस माई सेल्फ सिंस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री, बट ही इज, एंड लेट्स रिलाई ऑन हिज एक्सपर्टीज। तो अब ये सारी चीजें हमारी कवर हो गई, कुछ नहीं बचेगा एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर में। अब लास्ट चीज रहती है हमारा प्लान, कि 2 वीक्स में इस चीज को पढ़े कैसे, हाउ डू वी स्टडी दिस इन 2 वीक्स। तो अब प्लान की बात कर लेते हैं, व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो इन माय फ्री इनिशिएटिव कॉल्ड स्टेप which is Dr. Shivan's targeted exam plan for prelims 2025, I will be uploading a plan right now। जैसे ये वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद मैं 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने वाला हूं। फर्स्ट इज दिस डॉक्यूमेंट ऑन हाउ टू स्टडी नितिन सिंघानिया सर्स बुक, एंड द सेकंड वन इज अ प्लान। अब इस प्लान में क्या सोचा है कि नेक्स्ट 14 डेज में हम पूरा एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर खत्म करेंगे। 14 डेज में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप अपना फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, विच इज लेट्स से 4 to 5 hours, दिस यू विल गिव टू AMAC,
इसमें प्लान में क्या लिखा होगा, दिस विल ऑल्सो बी एन एक्सेल शीट। डेली टारगेट्स तो मैं यहां पोस्ट करूंगा ही, आप वो डेली टारगेट्स फॉलो कर लो, वैसे ही आपका काम हो जाएगा। बट इन दिस कंप्लीट प्लान आई विल राइट टॉपिक, बुक नेम, कि अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है तो बुक नेम कौन सा, और इस बुक के कौन से पेज नंबर्स, राइट। वो बेसिकली थोड़े एडिशन सबके अलग हो सकते हैं, बट यूल गेट द आइडिया, राइट। एक बेसिक आइडिया तो आपको लग ही जाएगा। तो अब आप इस प्लान को फॉलो कर लो। अब आपके पास मैप्स भी हैं, टर्मिनोलॉजीज भी हैं, फिलोसफीज भी सॉर्टेड हैं, पीवाईक्यूज भी सॉर्टेड हैं, प्लान भी बन गया, पढ़ना भी समझ आ गया। लेट्स नाउ स्टडी दिस सब्जेक्ट प्रॉपरली एंड गेन एन एज ऑफ 8 to 10 मार्क्स। ये एज लेना हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस विल गिव अस लीवे कि अगर कहीं पे गलती से हमारे से कोई सिली मिस्टेक्स भी हो गई प्रीलिम्स में, तो इन 8 to 10 मार्क्स के बेसिस पे विल बी एबल टू सेल थ्रू, एंड दिस इज समथिंग दैट नोबडी एल्स डज। अब आपको लग रहा होगा बहुत लोग ये वीडियो देख लेंगे फिर भी फॉलो नहीं करेंगे, राइट। फॉलो दिस टू द टी एंड आई गारंटी यू, you will have an edge over others as far as ancient medieval art and culture is concerned. So thank you for watching. See you next time, and I hope this can add some value to your prep. Thank you. Bye bye.